Actually, somewhere I read that perfection is a myth. But if someone is determined, if someone is dedicated towards something, then that person can break any myth. And now in today's episode, we have two people who have broken all the myths about that. Yeah, people from middle class family cannot do amazing. People can, like a girl child cannot come forward in the field of sports, in the field of yoga, in the field of gymnast. All these myths have been broken because we have live example of Miss Anamika and her brother Manish as well. So these people are the gems of family, gems of country, and undoubtedly the blessings for the world. So again, please help me in welcoming very amazing, immensely talented Miss Anamika and Master Manish. Soulfully welcome you on the show, Meet to Magnet. Thank you so much. Okay, तो सबसे पहले, like before beginning anything and to begin with any question, I would like to ask that what inspired you, because at such a small age you started to practice yoga and your father has been your trainer. So this journey is also inspiring for a lot of parents as well. तो ऐसा क्या हुआ था कि you started this at this small age, or what was your motivation towards it? एक्चुअली मेरी जो योगा की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मेरे भाई को देखते हुए हुई थी. बिकॉज बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ इतना नहीं रह पाई थी. मैं इतनी जल्दी चीजों को ग्रैब नहीं कर पाती थी, कुछ भी मैं सीख नहीं पाती थी. लाइक बहुत ही डल सा मेरा इको था. मैं किसी भी चीज को जल्दी से कैचअप नहीं कर पाती थी. एंड माई ब्रदर Anish, he was living with my parents in early age, so he got a chance to learn because my father from that field, so he has a knowledge and he is sharing her knowledge to him. And Manish was doing great in his field. Like lots of people are just saying that Manish is doing great in his field. When I was going to the school, everybody was saying that Anamika, your brother Manish is doing so well. So I am also deciding to do something interesting. And then my journey of yoga started. And what about Manish? आपको क्या था वो, like that motivation behind your journey, कि parents की तरफ से inspiration था या आपको लगता था कि हाँ this field could be better for me? ऐसा क्या आपको लगा था कि हाँ मेरे को ये field अच्छा है और इसमें मैं अपनी मेहनत करता हूँ? देखते हैं. I think that for a middle class family, there is no need to inspiration. The inspiration comes within by seeing our family condition. Really great point. Yes. सर मैं अपने मम्मी पापा से काफी इंस्पायर हुआ हूँ. और मैं बचपन में बहुत ही चंचल था और मैंने पापा के कुछ फोटोज देखे थे अखाड़े के, तो मुझे बहुत शौक हुआ. मैंने अपने पिताजी को बोला कि आप मुझे ये चीज सिखाइए, और मैं पूरे डेडिकेटली पूरे पेशेंस से इस चीज को किया मैंने. तो बहुत ही जल्दी मैं सीखता गया और पापा ने मुझे नई नई कलाएं सिखाती गई. एक्चुअली इंस्पायरिंग, बिकॉज बहुत ही मुश्किल होता है उस अर्ली स्टेज में ये समझ पाना कि हाँ विच फील्ड वी वांट टू वर्क इन, एंड लाइक ऐसा कौन सा काम है जो हम करना चाहते हैं. बट फॉर्चुनेटली एंड विद गॉड्स ग्रेस, और लाइक फर्स्टली दैट योर डेडिकेशन ऑफ बोथ ऑफ यू, कि आप उस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे. यू वर रेडी टू एक्सेप्ट इट, or you started work towards it. You put your lot of hard work into it. Or yes, we really proud of you, both of you. You have been the pride of the country. So really great. हर फील्ड एक होता है जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक तरह के स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक तरह के पीपल चाहिए होते हैं. लाइक if someone is really good at speaking, that person should be suitable, like could be suitable for the journalist. And if anyone who is really good at analytics research, that person could be suitable for scientific research, being as a scientist or in R&D, research and development. तो आपको क्या लगता है कि आपके इस फील्ड में किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी बच्चे में क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, किस तरह का उसका एटीट्यूड होना चाहिए, जो कि इसमें जिससे कि वो इसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ पाए? सर इन योगा एंड जिम्नास्ट फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है डिसिप्लिन. और डिसिप्लिन होगा तो हम इस चीज में अच्छे से कर पाएंगे.
डिसिप्लिन एंड इंटरेस्ट, दीज बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो अगर किसी भी चीज में, लाइक नॉट ओनली इन योगा और जिम्नास्ट, लाइक इन एवरी फील्ड यू आर टेकिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड और यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू विल डेफिनेटली डू समथिंग ग्रेट इन दैट। I watched one of the documentaries made on you, जो कि दंगल मूवी से काफी इंस्पायर थी, and the songs were chosen according to that, and it was really emotional and actually inspiring. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने जब दंगल मूवी देखी थी, तो what was the reaction from your family, from you? और उसके बाद लाइक एक और adding to this कि आप लोगों को क्या लगता है कि this kind of movie should be made through cinema, because I think this is the way to transfer the good kind of knowledge, good kind of example to the people, so they can get inspired from the real life story. तो आप लोगों का क्या टेक है इस चीज? तो जब हमने मूवी देखी तो सर टोटली ये मूवी हमको लगा कि ये तो हमारी ही कहानी है। बिल्कुल लग रहा था यार। उसमें भी एक ऐसा ही था कि लाइक फादर पर हमारे साथ ये चीज थी कि हम खुद इंटरेस्ट से करते थे। Like my father is not forcing us to do that, but we are interested in doing. Like we are just following our parents. Whatever they are saying us, we are just doing that. हम ये नहीं सोचते थे कि इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, नहीं। जो उन्होंने बोल दिया कि आपको ऐसे करना है, बस हम लोग वही चीज़ फॉलो करते थे। और we are just thinking कि जो दंगल मूवी है, having the same story. Because my parents are also struggling like that. They are just always with us. That they are always supporting us to do something, and we are just doing that. And it would be a proud for us that we are doing something great for our country. बिल्कुल। लेकिन जैसे कि उस मूवी में हम देखते हैं स्टार्टिंग में वो जो उनके पिताजी होते हैं उनको बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन हमारी कहानी में स्टार्टिंग में ही हमको पापा ने बहुत सपोर्ट किया और हमने भी काफी शौक से किया इस काम। एंड आई थिंक लाइक जो भी काम आप कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, इफ यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग इट, तो आप उसमें अच्छा कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक द करिज्मेटिक वर्क बोथ ऑफ यू हैव डन इज आल्सो द एग्जांपल कि उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ इसको करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का पैशन आप लोगों की आंखों में दिखता है इसके लिए कि हाँ दैट हंगर टू डू दिस, वो एक्चुअली ऑलवेज जस्टिफाइड कि हाँ आप लोगों का ये पैशन बन चुका है एंड यू आर एक्चुअली लविंग इट टू डू दिस। एक्चुअली ग्रेट। ओके, तो एडिंग टू दिस एक्चुअली आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया कि हम बचपन से ही इस चीज में लग गए, लाइक वी कुडंट प्ले लाइक दैट, वो क्रेजी स्टफ जो बच्चे करते हैं, खेलते कूदते हैं, वो ऐसा आपने नहीं किया। आई एम मोर देन श्योर कि यू वर प्रैक्टिसिंग हार्ड। तो आप लोगों को ऐसा कभी लगता तो नहीं है कि हमने कुछ मिस किया है, या फिर लाइक हाउ डिफरेंट योर चाइल्डहुड वाज फ्रॉम अदर्स, कितना डिफरेंट था, और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि आपने कुछ मिस किया है, या फिर जो आपने किया दिस शुड बी डन बाय अदर्स एज वेल, क्या है आपके? Actually, this should be done because like lots of people are thinking that childhood is only for enjoyment, but it's not for. You are enjoying, but in a limit. You are enjoying it, just making your career. Because आपका बचपन ही होता है जो आपको आपकी लाइफ डिसाइड करता है, like what you are doing in your childhood. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल बच्चे जो है वो सोचते ही नहीं है। 12th कंप्लीट हो गई, BA कंप्लीट हो गया, उसके बाद सोचते कि मुझे अब क्या करना है। So ये आजकल का एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे पहले से अवेयर नहीं होते। बट अगर आपको बचपन से ही पता है कि आपको क्या करना है, तो यू विल गो इन अ राइट डायरेक्शन एंड यू विल अचीव इट ऑन अ राइट टाइम। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ही आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हमें ये करना है, बट हम वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाते। एंड वी आर स्टार्टिंग इट ऑन अ चाइल्डहुड, और हमें इस चीज़ को करने में लाइक बहुत अच्छा लगता है कि हम ये करते हैं। खुद को अच्छा फील होता है कि वी आर डूइंग समथिंग, वी आर doing something for our nation, we are doing something for our parents. और कभी भी ऐसा हमें बोरिंग सा फील नहीं हुआ कि हमने हमारे चाइल्डहुड में कभी ऐसा कुछ मिस किया, बिकॉज वी आर इंजॉइंग इट। हमने कभी भी इसको ऐसे नहीं लिया कि ये हमारे लिए एक मतलब वो है कि हमने इंजॉय नहीं किया। हमने खेला भी सही, पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, सारी चीज़ें करी, और साथ में हमने हमारे टैलेंट को फॉलो किया, हमने हमारा पैशन को भी फॉलो किया। एंड मनीष, लाइक योर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट और सेम? सर सेम एक्सपीरियंस। सर जब हम पीछे मुड़ के देखते तो लगता है कि काफी अचीव किया है हमने, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम करते थे तो मन में ख्याल आता था कि हम बाहर बच्चों के साथ खेलते नहीं थे,
पर सर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हमारी प्रैक्टिस को ही हमारे लिए गेम बन गया था, मतलब हम प्रैक्टिस को ही इंटरटेनमेंट समझते थे, उसी को इतने शौक से करते थे कि हमारे लिए गेम से कम नहीं होता था। जिस तरीके से बच्चे टीवी देखते हैं या फिर बाहर खेलने जाते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए टीवी थी, वो चीज़ हमारे लिए खेलना था। मतलब जो शोज हमें देखना, लाइक टीवी पे आजकल बच्चों को कार्टून्स और वगैरह देखना पसंद है, वैसा हमें भी पसंद था। कुछ दिन वो रहा, लेकिन उसके बाद हमारा ध्यान कार्टून से और सारी चीज़ों से हटकर सिर्फ अपने काम पे लग गया कि हमारा जो भी है बस यही चीज़ है, क्योंकि वो हमें इतनी अच्छी लगती थी। लाइक बच्चों को होता है ना कि कोई गेम पसंद है, उसी तरीके से वो हमारा था कि हमें वो इतना पसंद था कि वी आर जस्ट वांट टू डू दैट। सर हम जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बालवीर काफी शौक से देखते थे। तो एक दिन हमें पिताजी ने बताया कि आप इनको क्यों देखते हो, आप कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया आपको टीवी पर देखे। तो सर उस दिन से फिर काफी इंस्पायर हो गए सर हम करने के लिए। वाह, आई थिंक या हम तो बच्चे होते हैं उस टाइम पर, वी वर रियली नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज रियली नॉट गुड फॉर अस, बट इन दैट फेज the way our parents are reacting to it, the way our parents are mentoring us, that is crucial. And actually Manish rightly mentioned that parents were telling the kind of stories, the kind of words they were putting to inspire us. वही चीज होती है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। एंड आप भी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लाइक यू फील प्राउड एंड यू फील ब्लेस्ड कि हमें वो चीज मिल पाई, दैट राइट काइंड ऑफ मेंटोरशिप। तो एक्चुअली ग्रेट। I watched one of the documentaries made on you, जो कि दंगल मूवी से काफी इंस्पायर थी, and the songs were chosen according to that, and it was really emotional and actually inspiring. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने जब दंगल मूवी देखी थी, what was the reaction from your family, from you? और उसके बाद like एक और adding to this कि आप लोगों को क्या लगता है कि this kind of movie should be made through cinema, because I think this is the way to transfer the good kind of knowledge, good kind of example to the people so they can get inspired from the real life story. तो आप लोगों का क्या टेक है इस चीज? सर जब हमने मूवी देखी तो सर टोटली ये मूवी हमको लगा कि ये तो हमारी ही कहानी है। बिल्कुल लग रहा था यार। उसमें भी एक ऐसा ही था कि लाइक फादर पर हमारे साथ ये चीज़ थी कि हम खुद इंटरेस्ट से करते थे। Like my father is not forcing us to do that, but we are interested in doing. Like we are just following our parents. Whatever they are saying us, we are just doing that. हम ये नहीं सोचते थे कि इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, नहीं। जो उन्होंने बोल दिया कि आपको ऐसे से करना है, बस हम लोग वही चीज़ फॉलो करते थे। और we are just thinking कि जो दंगल मूवी है, having the same story. Because my parents are also struggling like that. They are just always with us. That they are always supporting us to do something, and we are just doing that. And it would be a proud for us that we are doing something great for our country. लेकिन जैसे कि इस मूवी में हम देखते हैं स्टार्टिंग में वो जो उनके पिताजी होते हैं उनको बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन हमारी कहानी में स्टार्टिंग में ही हमको पापा ने बहुत सपोर्ट किया और हमने भी काफी शौक से किया इस काम। एंड आई थिंक लाइक जो भी काम आप कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, इफ यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग इट, तो आप उसमें अच्छा कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक द करिज्मेटिक वर्क बोथ ऑफ यू हैव डन इज आल्सो द एग्जांपल कि उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ इसको करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का पैशन आप लोगों की आंखों में दिखता है इसके लिए कि हाँ दैट हंगर टू डू दिस, वो एक्चुअली ऑलवेज जस्टिफाइड कि हाँ आप लोगों का ये पैशन बन चुका है एंड यू आर एक्चुअली लविंग इट। ओके, तो एडिंग टू दिस एक्चुअली आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया कि हम बचपन से ही इस चीज में लग गए, लाइक वी कुडंट प्ले लाइक दैट, वो क्रेजी स्टफ जो बच्चे करते हैं खेलते कूदते हैं, वो ऐसा आपने नहीं किया। आई एम मोर देन श्योर कि यू वर प्रैक्टिसिंग हार्ड। तो आप लोगों को ऐसा कभी लगता तो नहीं है कि हमने कुछ मिस किया है, या फिर लाइक हाउ डिफरेंट योर चाइल्डहुड वाज फ्रॉम अदर्स, कितना डिफरेंट था? और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि आपने कुछ मिस किया है, या फिर जो आपने किया दिस शुड बी डन बाय अदर्स एज वेल? क्या है आपके? Actually, this should be done because like lots of people are thinking that childhood is only for enjoyment, but it's not for. You are enjoying, but in a limit. You are enjoying and just making your career.
बिकॉज आपका बचपन ही होता है जो आपको आपकी लाइफ डिसाइड करता है, लाइक व्हाट यू आर डूइंग इन योर चाइल्डहुड। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल बच्चे जो है वो सोचते ही नहीं है, 12th कंप्लीट हो गई, BA कंप्लीट हो गया, उसके बाद सोचते कि मुझे अब क्या करना है। सो ये आजकल का एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे पहले से अवेयर नहीं होते। बट अगर आपको बचपन से ही पता है कि आपको क्या करना है, तो यू विल गो इन राइट डायरेक्शन एंड यू विल अचीव इट ऑन अ राइट टाइम। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ही आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हमें ये करना है, बट हम वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाते। एंड वी आर स्टार्टिंग इट ऑन अ चाइल्डहुड, और हमें इस चीज़ को करने में लाइक बहुत अच्छा लगता है कि हम ये करते हैं। खुद को अच्छा फील होता है कि वी आर डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर नेशन, वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर पेरेंट्स। और कभी भी ऐसा हमें बोरिंग सा फील नहीं हुआ कि हमने हमारे चाइल्डहुड में कभी ऐसा कुछ मिस किया, बिकॉज वी आर इंजॉइंग इट। हमने कभी भी इसको ऐसे नहीं लिया कि ये हमारे लिए एक मतलब वो है कि हमने इंजॉय नहीं किया। हमने खेला भी सही, पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, सारी चीज़ें करी, और साथ में हमने हमारे टैलेंट को फॉलो किया, हमने हमारा पैशन को भी फॉलो किया। And Manish, like your experience is different or same? तो सेम एक्सपीरियंस सर। जब हम पीछे मुड़ के देखते तो लगता है कि काफी अचीव किया है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम करते थे तो मन में ख्याल आता था कि हम हमारे बच्चों के साथ खेलते नहीं थे। पर सर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हम हमारी प्रैक्टिस को ही हमारे लिए गेम बन गया था, मतलब हम प्रैक्टिस को ही इंटरटेनमेंट समझते थे, उसी को इतने शौक से करते थे कि हमारे लिए गेम से कम नहीं होता था। जिस तरीके से बच्चे टीवी देखते हैं या फिर बाहर खेलने जाते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए टीवी थी, वो चीज़ हमारे लिए खेलना था। मतलब जो शोज हमें देखना, लाइक टीवी पे आजकल बच्चों को कार्टून्स और वगैरह देखना पसंद है, वैसा हमें भी पसंद था। कुछ दिन वो रहा, लेकिन उसके बाद हमारा ध्यान कार्टून से और सारी चीज़ें से हटकर सिर्फ अपने काम पे लग गया कि हमारा जो भी है बस यही चीज़ है, क्योंकि वो हमें इतनी अच्छी लगती थी। लाइक बच्चों को होता है ना कि कोई गेम पसंद है, उसी तरीके से वो हमारा था कि हमें वो इतना पसंद था कि वी आर जस्ट वांट टू डू दैट। सर हम जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बालवीर काफी शौक से देखते थे। तो एक दिन हमें पिताजी ने बताया कि आप इनको क्यों देखते हो, आप कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया आपको टीवी पर देखे। तो सर उस दिन से फिर काफी इंस्पायर हो गए थे हम करने के। आई थिंक या हम तो बच्चे होते हैं उस टाइम पर, वी वर रियली नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज रियली नॉट गुड फॉर अस। बट इन दैट फेज the way our parents are reacting to it, the way our parents are mentoring us, that is crucial. And I actually Manish rightly mentioned that parents were telling the kind of stories, the kind of words they were putting to inspire us. वही चीज होती है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। एंड आप भी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लाइक यू फील प्राउड एंड यू फील ब्लेस्ड कि हमें वो चीज मिल पाई, दैट राइट काइंड ऑफ मेंटोरशिप। तो एक्चुअली ग्रेट। I watched one of the documentaries made on you, जो कि दंगल मूवी से काफी इंस्पायर थी, and the songs were chosen according to that, and it was really emotional and actually inspiring. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने जब दंगल मूवी देखी थी, what was the reaction from your family, from you? और उसके बाद लाइक एक और adding to this कि आप लोगों को क्या लगता है कि this kind of movie should be made through cinema, because I think this is the way to transfer the good kind of knowledge, good kind of example to the people, so they can get inspired from the real life story. तो आप लोगों का क्या टेक है इस चीज? सर जब हमने मूवी देखी तो सर टोटली ये मूवी हमको लगा कि ये तो हमारी ही कहानी है। बिल्कुल लग रहा था यार। उसमें भी एक ऐसा ही था कि लाइक फादर पर हमारे साथ ये चीज़ थी कि हम खुद इंटरेस्ट से करते थे। Like my father is not forcing us to do that, but we are interested in doing. Like we are just following our parents. Whatever they are saying us, we are just doing that. हम ये नहीं सोचते थे कि इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, नहीं। जो उन्होंने बोल दिया कि आपको ऐसे से करना है, बस हम लोग वही चीज़ फॉलो करते थे। और we are just thinking कि जो दंगल मूवी है, having the same story. Because my parents are also struggling like that. They are just always with us. That they are always supporting us to do something, and we are just doing that. And it would be a proud for us that we are doing something great for our country. लेकिन जैसे कि इस मूवी में हम देखते हैं स्टार्टिंग में वो उनके पिताजी होते हैं उनको बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन हमारी कहानी में स्टार्टिंग में ही हमको पापा ने बहुत सपोर्ट किया और हमने भी काफी शौक से किया इस काम। एंड आई थिंक लाइक
जो भी काम आप कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, इफ यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग इट, तो आप उसमें अच्छा कर ही नहीं सकते. So I think the charismatic work both of you have done is also the example कि उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ इसको करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का पैशन आप लोगों की आंखों में दिखता है इसके लिए कि हाँ that hunger to do this, वो actually always justified कि हाँ आप लोगों का ये पैशन बन चुका है and you are actually loving it to do this. So actually great. Okay, तो adding to this actually I would like to know कि आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया कि हम बचपन से ही इस चीज में लग गए, लाइक वी कुडंट प्ले लाइक दैट, वो क्रेजी स्टफ जो बच्चे करते हैं, खेलते कूदते हैं, वो ऐसा आपने नहीं किया. आई एम मोर देन श्योर कि यू वर प्रैक्टिसिंग हार्ड. तो आप लोगों को ऐसा कभी लगता तो नहीं है कि हमने कुछ मिस किया है, या फिर लाइक हाउ डिफरेंट योर चाइल्डहुड वाज फ्रॉम अदर्स, कितना डिफरेंट था, और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि आपने कुछ मिस किया है, या फिर जो आपने किया दिस शुड बी डन बाय अदर्स एज वेल, क्या है आपके? Actually this should be done because like lots of people are thinking that childhood is for only for enjoyment, but it's not for. You are enjoying but in a limit. You are enjoying and just making your career, because आपका बचपन ही होता है जो आपको आपकी लाइफ डिसाइड करता है, like what you are doing in your childhood. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल बच्चे जो है वो सोचते ही नहीं है. 12th कंप्लीट हो गई, BA कंप्लीट हो गया, उसके बाद सोचते कि मुझे अब क्या करना है. सो ये आजकल का एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे पहले से अवेयर नहीं होते. बट अगर आपको बचपन से ही पता है कि आपको क्या करना है, तो यू विल गो इन राइट डायरेक्शन एंड यू विल अचीव इट ऑन अ राइट टाइम. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ही आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हमें ये करना है, बट हम वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाते. एंड वी आर स्टार्टिंग इट ऑन अ चाइल्डहुड, और हमें इस चीज़ को करने में लाइक बहुत अच्छा लगता है कि हम ये करते हैं. खुद को अच्छा फील होता है कि वी आर डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर नेशन, वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर पेरेंट्स. और कभी भी ऐसा हमें बोरिंग सा फील नहीं हुआ कि हमने हमारे चाइल्डहुड में कभी ऐसा कुछ मिस किया, बिकॉज वी आर इंजॉइंग इट. हमने कभी भी इसको ऐसे नहीं लिया कि ये हमारे लिए एक मतलब वो है कि हमने इंजॉय नहीं किया. हमने खेला भी सही, पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, सारी चीज़ें करी, और साथ में हमने हमारे टैलेंट को फॉलो किया, हमने हमारा पैशन को भी फॉलो किया. And Manish, like your experience is different or same? तो सेम एक्सपीरियंस सर. जब हम पीछे मुड़ के देखते तो लगता है कि काफी अचीव किया है हमने, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम करते थे तो मन में ख्याल आता था कि हम बाहर बच्चों के साथ खेलते नहीं थे. पर सर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हमारी प्रैक्टिस को ही हमारे लिए गेम बन गया था. मतलब हम प्रैक्टिस को ही इंटरटेनमेंट समझते थे, उसी को इतने शौक से करते थे कि हमारे लिए गेम से कम नहीं होता था. जिस तरीके से बच्चे टीवी देखते हैं या फिर बाहर खेलने जाते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए टीवी थी, वो चीज़ हमारे लिए खेलना था. मतलब जो शोज हमें देखना, लाइक टीवी पे आजकल बच्चों को कार्टून्स और वगैरह देखना पसंद है, वैसा हमें भी पसंद था. कुछ दिन वो रहा, लेकिन उसके बाद हमारा ध्यान कार्टून से और सारी चीज़ों से हटकर सिर्फ अपने काम पे लग गया कि हमारा जो भी है बस यही चीज़ है, क्योंकि वो हमें इतनी अच्छी लगती थी. लाइक बच्चों को होता है ना कि कोई गेम पसंद है, उसी तरीके से वो हमारा था कि हमें वो इतना पसंद था कि वी आर जस्ट वांट टू डू दैट. सर हम जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बालवीर काफी शौक से देखते थे. तो एक दिन हमें पिताजी ने बताया कि आप इनको क्यों देखते हो, आप कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया आपको टीवी पर देखे. तो सर उस दिन से फिर काफी इंस्पायर हो गए सर हम करने के. आई थिंक या हम तो बच्चे होते हैं उस टाइम पर, वी वर रियली नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज रियली नॉट गुड फॉर अस. बट इन दैट फेज the way our parents are reacting to it, the way our parents are mentoring us, that is crucial. And I actually Manish rightly mentioned that parents were telling the kind of stories, the kind of words they were putting to inspire us. वही चीज होती है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है. एंड आप भी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लाइक यू फील प्राउड एंड यू फील ब्लेस्ड कि हमें वो चीज मिल पाई, दैट राइट काइंड ऑफ मेंटोरशिप. तो एक्चुअली ग्रेट. I watched one of the documentaries made on you, जो कि दंगल मूवी से काफी इंस्पायर थी, and the songs were chosen according to that, and it was really emotional and actually inspiring. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने जब दंगल मूवी देखी थी, तो what was the reaction from your family, from you? और उसके बाद like एक और adding to this कि आप लोगों को क्या लगता है कि this kind of movie should be made through cinema, because I think this is the way to transfer the good kind of knowledge,
good kind of example to the people so they can get inspired from the real life story. तो आप लोगों का क्या टेक है इस चीज? सर जब हमने मूवी देखी तो सर टोटली ये मूवी हमको लगा कि ये तो हमारी ही कहानी है। बिल्कुल लग रहा था यार। उसमें भी एक ऐसा ही था कि लाइक फादर पर हमारे साथ ये चीज थी कि हम खुद इंटरेस्ट से करते थे। लाइक माय फादर इज नॉट फोर्सिंग अस टू डू दैट, but we are interested in doing like we are just following our parents, whatever they are saying us we are just doing that. हम ये नहीं सोचते थे कि इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, नहीं, जो उन्होंने बोल दिया कि आपको ऐसे से करना है बस हम लोग वही चीज़ फॉलो करते थे। और वी आर जस्ट थिंकिंग कि जो दंगल मूवी है हैविंग द सेम स्टोरी because my parents are also struggling like that. They are just always with us, that they are always supporting us to do something, and we are just doing that, and it would be a proud for us that we are doing something great for our country. बिल्कुल। लेकिन जैसे कि उस मूवी में हम देखते हैं स्टार्टिंग में वो जो उनके पिताजी होते हैं उनको बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन हमारी कहानी में स्टार्टिंग में ही हमको पापा ने बहुत सपोर्ट किया और हमने भी काफी शौक से किया इस काम। एंड आई थिंक लाइक जो भी काम आप कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, इफ यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग इट, तो आप उसमें अच्छा कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक द करिज्मेटिक वर्क बोथ ऑफ यू हैव डन इज आल्सो द एग्जांपल कि उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ इसको करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का पैशन आप लोगों की आंखों में दिखता है इसके लिए कि हाँ दैट हंगर टू डू दिस, वो एक्चुअली ऑलवेज जस्टिफाइड कि हाँ आप लोगों का ये पैशन बन चुका है एंड यू आर एक्चुअली लविंग इट टू डू दिस। तो एक्चुअली ग्रेट। ओके, तो एडिंग टू दिस एक्चुअली आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया कि हम बचपन से ही इस चीज में लग गए, लाइक वी कुडंट प्ले लाइक दैट, वो क्रेजी स्टफ जो बच्चे करते हैं खेलते कूदते हैं, वो ऐसा आपने नहीं किया। आई एम मोर देन श्योर कि यू वर प्रैक्टिसिंग हार्ड। तो आप लोगों को ऐसा कभी लगता तो नहीं है कि हमने कुछ मिस किया है, या फिर लाइक हाउ डिफरेंट योर चाइल्डहुड वाज फ्रॉम अदर्स, कितना डिफरेंट था, और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि आपने कुछ मिस किया है, या फिर जो आपने किया दिस शुड बी डन बाय अदर्स एज वेल, क्या है आपके? Actually this should be done because like lots of people are thinking that childhood is for only for enjoyment, but it's not for, you are enjoying but in a limit, you are enjoying it just making your career, because आपका बचपन ही होता है जो आपको आपकी लाइफ डिसाइड करता है, like what you are doing in your childhood। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल बच्चे जो है वो सोचते ही नहीं है, 12th कंप्लीट हो गई, BA कंप्लीट हो गया, उसके बाद सोचते कि मुझे अब क्या करना है। सो ये आजकल का एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे पहले से अवेयर नहीं होते, बट अगर आपको बचपन से ही पता है कि आपको क्या करना है तो यू विल गो इन अ राइट डायरेक्शन एंड यू विल अचीव इट ऑन अ राइट टाइम। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ही आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हमें ये करना है, बट हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते, एंड वी आर स्टार्टिंग इट ऑन अ चाइल्डहुड। और हमें इस चीज़ को करने में लाइक बहुत अच्छा लगता है कि हम ये करते हैं, खुद को अच्छा फील होता है कि वी आर डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर नेशन, वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर पेरेंट्स। और कभी भी ऐसा हमें बोरिंग सा फील नहीं हुआ कि हमने हमारे चाइल्डहुड में कभी ऐसा कुछ मिस किया, बिकॉज वी आर इंजॉइंग इट। हमने कभी भी इसको ऐसे नहीं लिया कि ये हमारे लिए एक मतलब वो है कि हमने इंजॉय नहीं किया, हमने खेला भी सही, पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, सारी चीज़ें करी, और साथ में हमने हमारे टैलेंट को फॉलो किया, हमने हमारा पैशन को भी फॉलो किया। एंड मनीष, लाइक योर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट और सेम? तो सेम एक्सपीरियंस सर, जब हम पीछे मुड़ के देखते तो लगता है कि काफी अचीव किया है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम करते थे तो मन में ख्याल आता था कि हम हमारे बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, और सर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हम हमारी प्रैक्टिस को ही हमारे लिए गेम बन गया था, मतलब हम प्रैक्टिस को ही एंटरटेनमेंट समझते थे, उसी को इतने शौक से करते थे कि हमारे लिए गेम से कम नहीं होता था। जिस तरीके से बच्चे टीवी देखते हैं या फिर बाहर खेलने जाते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए टीवी थी, वो चीज़ हमारे लिए खेलना था। मतलब जो शोज हमें देखना, लाइक टीवी पे आजकल बच्चों को कार्टून्स और वगैरह देखना पसंद है, वैसा हमें भी पसंद था। कुछ दिन वो रहा, लेकिन उसके बाद हमारा ध्यान कार्टून से और सारी चीज़ों से हटकर सिर्फ अपने काम पे लग गया कि हमारा जो भी है बस यही चीज़ है, क्योंकि वो हमें इतनी अच्छी लगती थी। लाइक बच्चों को होता है ना कि कोई गेम पसंद है, उसी तरीके से वो हमारा था कि हमें वो इतना पसंद था कि वी आर जस्ट वांट टू डू दैट। सर हम जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बालवीर काफी शौक से देखते थे। तो एक दिन हमें पिताजी ने बताया कि आप इनको क्यों देखते हो, आप कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया आपको टीवी पर देखे।
तो सर उस दिन से फिर काफी इंस्पायर हो गए सर हम करने के लिए। वाह, आई थिंक या हम तो बच्चे होते हैं उस टाइम पर, वी वर रियली नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज रियली नॉट गुड फॉर अस, बट इन दैट फेज the way our parents are reacting to it, the way our parents are mentoring us, that is crucial. And I actually, Manish rightly mentioned that parents were telling the kind of stories, the kind of words they were putting to inspire us. वही चीज होती है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। एंड आप भी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लाइक यू फील प्राउड एंड यू फील ब्लेस्ड कि हमें वो चीज मिल पाई, दैट राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप। तो एक्चुअली ग्रेट।